خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ 11 اپریل تک جاری رہنے والے جموں کشمیر اسمبلی کے بجٹ سیشن کا کل سے ہو رہا ہے آغاز۔ منشیات کی بدعت کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا وزیر داخلہ امت شاہ کا عہد۔ جموں کشمیر سمیت پورے ملک میں مقدس اور بابرکت ماہ رمضان آج سے ہوا شروع۔ وزیر اعظم، لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے عوام کو دی اس پرفضیلت مہینے کی مبارکباد۔ اور ملک میں سپلائی نظام کو مستحکم بنانے اور خوراک کی یقینی فراہمی میں مرکزی ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن کے رول کو متعلقہ مرکزی وزیر نے کیا اجاگر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر اسمبلی کا بجٹ سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کل صبح 10 بجے بجٹ سیشن کے پہلے روز ایوان سے خطاب کریں گے۔ یہ بجٹ سیشن 11 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی، جس دوران اس بجٹ سیشن سے جڑے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسپیکر عبدالرحیم راتر نے سیشن کی کارروائی احسن طریقے سے چلانے کے لیے کل جماعتی میٹنگ بھی طلب کی تھی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ملک میں 12 مختلف کیسوں میں عدالتوں میں منشیات کے 29 اسمگلروں کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ ایسا تفصیلی اور ٹھوس چھان بین کے بعد ہوا ہے۔ اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار منشیات کے اسمگلروں کو سخت سزا دینے کا کام کر رہی ہے، جو پیسوں کی خاطر نوجوانوں کو نشے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے مکمل تحقیقات کے ساتھ اس بدعت کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عہد کیا۔ جموں کشمیر سمیت پورے ملک میں رمضان کا مقدس مہینہ آج سے شروع ہوا۔ اس مقدس مہینے کے دوران رات میں خصوصی نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ خلیجی ملکوں میں رمضان کے مہینے کا کل پہلا روزہ تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مقدس ماہ رمضان شروع ہونے پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مقدس مہینہ معاشرے میں امن اور ہم آہنگی لائے گا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ رمضان المبارک تشکر اور خود کو وقف کرنے کی عکاسی کرتا ہے اور لوگوں کو رحم دلی، محبت اور ہمدردی کی اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور کئی دیگر وزراء نے عوام کو رمضان کے مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مہینہ جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی لے کر آئے گا۔ کئی سیاسی اور سماجی لیڈروں کے علاوہ مختلف مذہبی انجمنوں اور رہنماؤں نے بھی عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی ہے۔ رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ فضیلت سے پر ہے۔ یہ مہینہ تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے۔ اس مقدس مہینے کے دوران اللہ کے بندے زیادہ تر وقت عبادات میں صرف کر کے رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج پہلا روزہ ہے اللہ کے فضل سے، تو آج ہم نے جو خرید و فروخت کر لی سحری اور افطاری کے لیے، اس خرید و فروخت کے ساتھ میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو آس پاس میں غریب غربا ہے ان کا دھیان رکھا جائے، وہ بھی اپنی سحری اور افطاری کر سکے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں بازار میں ہی وقت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ذکر میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ ماہ رمضان کا مبارکباد، پہلا ماہ رمضان ہے۔ آج بازار میں بہت بھیڑ ہے، پہلے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے اور لوگ خریداری کر رہے ہیں، تو ریٹ بھی الحمدللہ ٹھیک ہی چل رہا ہے ابھی، تو لوگ بھی بہت ہے، رش بہت ہے بازار میں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उनके हमरा इस गैर सरकारी तंजीम के कुछ और ओहदेदारान भी थे। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुनरमंदी के फरोग, यूथ फैसिलिटेशन सेंटर्स, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खेलों से मुतालिक ढांचे को वुसअत देने के अलावा कश्मीरी कल्चर और तवारीखी एतबार से अहम जगहों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे कलीदी मामलात के हवाले से जानकारी फराहम की। इस मौके पर उन्होंने सियाहती शोबे के फरोग, कश्मीरी मीरास और दस्तकारियों के हवाले से जानकारी आम करने की भी अहमियत उजागर की। पुलवामा में आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एमएसएमई की मरकजी वजारत और जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से डीसी ऑफिस पुलवामा में मुनाकिदा इस प्रोग्राम के दौरान दस्तकारों की रजिस्ट्रेशन और पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के हवाले से जानकारी फराहम करने की पहल की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुलवामा के मैनेजर ने कहा कि मज़कूरा स्कीम के तहत कई तरह के दस्तकारों को लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कीम के जरिए दस्तकारों को तरबियत फराहम करने के अलावा मुख्तलिफ आलात वगैरह भी फराहम किए जाते हैं। मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर और बडगाम अजला से 4 मनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने नूरबाग चौक श्रीनगर में एक नाका चेकिंग के दौरान 3 अफराद नवाकदल के अहमद बिन अशफाक कावा, पालपुरा नूरबाग के दानियाल अहमद बिसाती और आलीकदल श्रीनगर के ताहा यासिर के कब्जे से 184 ग्राम चरस जब्त किया, जिसके बाद इन तीनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान आरी पांथन बडगाम से सरनहाल बटपोरा बडगाम के अशफाक अहमद गनाई को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 60 ग्राम चरस नुमा शय जब्त की है। दोनों मामलात में पुलिस ने बाज़ाब्ता केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बांडीपुरा पुलिस ने आज जिले के कई मकामात और तालीमी इदारों में 3 नए फौजदारी कवानीन की बेदारी से मुतल्लिक प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इन बेदारी प्रोग्रामों का मकसद अवाम, तालीमी इदारों की फैकल्टी और तलबा को उन कवानीन के बारे में जानकारी फराहम करना था। लोगों की कसीर तादाद और तलबा ने इन प्रोग्रामों में शिरकत की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज अपना 175वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर जियो साइंस फॉर सेफ वर्ल्ड थीम के तहत एक पैन इंडिया वॉकथन का एहतमाम किया गया, ताकि आफाती समावी, पायदार रिसोर्स मैनेजमेंट और महफूज माहौलियात की यकीन दहानी के लिए अवाम में बेदारी पैदा की जा सके। श्रीनगर में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कश्मीर ऑफिस ने डायरेक्टर अब्दुल कयूम पाल की क़यादत में दरियाए जहलम के किनारे एक वॉकथन का एहतमाम किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साल 175वां साल एस्टेब्लिशमेंट का मना रहा है। इस सिलसिले में हमने जियो साइंस फॉर सेफ वर्ल्ड के मौजू के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद था सभी लोग, पब्लिक, मीडिया और स्टेक होल्डर्स को अर्थ के लिमिटेड रिसोर्सेज और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आगाह कराना था। मशहूर संतूर नवाज और मूसीकार पंडित अभय रुस्तम सोपोरी को सरगम मंदिर की तरफ से स्वर श्री समन 2025 से नवाजा गया है। उन्हें यह एजाज आज त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में सरगम मंदिर की 61 साला तकरीबात के दौरान पेश किया गया। वाज़ेह है कि सरगम मंदिर दिल्ली का एक मकबूल तरीन सकाफती इदारा है, जिसे 1964 में किराना घराने के पंडित जगदीश मोहन ने कायम किया था। अवार्ड हासिल करते हुए पंडित अभय सोपोरी ने इस अवार्ड को अपने उस्तादों पंडित शंभुनाथ सोपोरी और पंडित भजन सोपोरी के नाम वक्फ किया। फौज की राना बटालियन ने आज बख्तूर गुरेज में स्नो आर्ट कंपटीशन और स्नो खो खो मैच का इनेकाद किया। इस मौके पर मकामी बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत करके अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए बर्फ के मुख्तलिफ मुजस्समे तैयार किए। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना था। मकामी लोगों ने फौज की इन काविशों की काफी सराहना की है। आज हमने स्नो आर्ट का प्रोग्राम मनाया है गुरेज हाई ग्राउंड में। ये प्रोग्राम इंडियन आर्मी की तरफ है। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम मनाया है। आज हमने इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया और बहुत सारी गेम्स भी खेली। स्नो आर्ट, स्नो मैन्स बनाया और हम इंडियन आर्मी से यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी गेम खेले कि बच्चों को इन्वाइट करें और हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं।
अमूरी सारिफीन अवामी तकसीम कारी महकमे के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने मुल्क में सप्लाई निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और खुराक की यकनी फराहमी में मरकजी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रोल को उजागर किया है। नई दिल्ली में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 69वें यौम तासीस के मौके पर एक वीडियो प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस इदारे ने माली साल 2023-24 के दौरान 21 लाख मुरबा फुट से ज्यादा गजाई अजनास की स्टोरेज की इजाफी गुंजाइश पैदा करके काबिल तासीन कोशिशें की हैं। इंतखाबी कमीशन ने वाज़ेह किया है कि फोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड का नंबर किसी दूसरे कार्ड के नंबर जैसा होने का मतलब नहीं है कि वो कोई डुप्लीकेट या फर्जी वोटर है। कमीशन ने बाज़ मीडिया इतलात के तनाजुर में एक बयान में बात कही है। इन इतलात में इस मामले को उजागर किया गया था कि दो मुख्तलिफ रियासतों के राय दहनगान के फोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड के नंबर यकसा हैं। कमीशन ने वजाहत की है कि हो सकता है कि कुछ राय दहनगान के शनाख्ती कार्ड नंबर यकसा हों, लेकिन असेंबली हल्का और पोलिंग बूथ जैसी दीगर तफसीलात दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चुनाव कमीशन ने भी कहा कि वोटरों का डेटाबेस एरोनेट प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किए जाने से कबल इसमें गैर मरकूज और मैनुअल तरीक़ेकार अपनाए जाने की वजह से मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों के कुछ राय दहनगान को फोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड के जैसे नंबर अलॉट हुए थे। उत्तराखंड में चमोली जिले के गांव में बर्फ के तोदे खिसकने की वजह से बीआरओ कैंप में फंसे हुए कारकुनों में से अब तक 51 कारकुनों को बर्फ से बाहर निकाला गया है। ताहम उनमें से 4 कारकुन इलाज के दौरान चल बसे। बकिया 4 कारकुनों की तलाश जारी है। खबरों के मुताबिक उत्तराखंड के आफात से पैदा हालात से निपटने के महकमे के सेक्रेटरी ने बताया कि बर्फ में फंसे हुए बाकी मानदा कारकुनों का पता लगाने के लिए बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनके मुल्क के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत अहमियत की हामिल है। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ बहस व तकरार के एक दिन बाद सदर जेलेंस्की का यह बयान सामने आया है। लंदन पहुंचने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनका मुल्क हर तरह की मदद, खासतौर पर रूस के साथ जंग के 3 साल के दौरान अमेरिकी मदद के लिए उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन से ज्यादा कोई भी क़याम अमन का मुतमन्नी नहीं है। आज सीसी चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप ए के एक मैच में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले भारत को बल्लेबाजी करने की दावत दी। भारत के इब्तदाई खिलाड़ी अगरचे कुछ खास कारदगी का मुजाहरा नहीं कर पाए, तहम श्रेयास अय्यर, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने टीम की पोजीशन बेहतर बनाई और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 250 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से मैक हेनरी ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अभी तक न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। गुरेज प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 दावर की टीम ने जीत लिया है। फौज के एहतमाम से मुनाकिद इस लीग के फाइनल मैच में दावर की टीम ने मरकुट की टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। फाइनल मैच के दौरान तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही, जबकि इस दौरान 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर बाराथन, मुंसिफ जज महबूब, 16 आसाम रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गणेश सिंह पोखरिया और एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद भी मौजूद रहे। फाइनल मैच के इख्तिताम पर फातह टीम और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। वादी में आज मौसम कदरे खुशगवार रहा और दिन भर हल्की धूप छाई रही। तहम श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि रात देर गए मौसम में तगय्युर और तबद्दुल का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कल बेशतर जगहों पर बारिश या हल्की बर्फबारी, जबकि जनूबी और वस्ती कश्मीर में चंद बलाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की या भारी बर्फबारी हो सकती है। आज भी मौसम ठीक रहेगा, नाइट तक, लेट नाइट तक ठीक रहेगा और 4 से लेकर 9 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा, खुशगवार रहेगा। 10 से फिर थोड़ा सा एक WD अप्रोच कर रहा है, वो लाइट रेन, ब्लिक स्नो, ब्लिक थंडरशॉवर हाई रिचेस पे होने के चांसेस हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।